Today, we will discuss health management in PSM. First of all, the definition of health management, which is given by WHO. It is the efficient and effective utilization of resources and to get the people to work harmoniously together in order to achieve specific objective. So this is the definition of management. Now we will discuss the health management tools, which are divided into qualitative tools and quantitative tools. First of all, we will begin from qualitative tools. We have five types of qualitative tools. The first one is the organizational design, then personal management, management by objective MBO, the health information system, and communication. We'll discuss each one of them one by one. These all are qualitative tools. The first qualitative tool is the organizational design. As the name suggests, the design of the organization. The organization must be suited to its current situation and the needs. Organization of health services should therefore be designed so as to meet the health needs and the demands of the people. Further, the organizational design should be reviewed every year because of changing concepts, changing purpose, changing problems, changing technology. Example, previously PHCs caters to 1 lakh population, leading to overburdening of the PHC, but now they caters to 20 to 30,000 of the population. So this is about organizational design. The second tool is personal management. The personal management में क्या क्या आ सकता है कि resources का skillful use हो. तो first should be the skillful use of resources. Second, selection का proper method हो, proper method of selection. Third, training हो, motivation हो. Fourth, division of responsibility हो, then division of role हो, then division of role means distribution of role ho, then they should be adapted to a person's skill ho, then incentives should be there, then effective design of health team should be there. So this is how a personal management could be done, and this is an qualitative tool of health management. The third tool is management by objective. It is a process wherein the manager identifies the members and entrusts them the responsibilities and entrusts the responsibilities for each member. तो वो आइडेंटिफाई करते हैं मेंबर्स को और हर मेंबर को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. ठीक है. इसमें हेल्थ टीम कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू सब यूनिट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और दीज सब यूनिट्स विल प्लान देयर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो हर टीम को उन्होंने सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर सब यूनिट अपना अपना प्लान खुद अपने हिसाब से करेंगे. नाउ इफ़ वी सी द स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एक गोल को सेट करना है, सेटिंग द गोल. सेकेंड, हमारे को यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है और सब यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड सब यूनिट्स. थर्ड, हमें सबऑर्डिनेट गोल्स बनाने हैं फॉर ईच सब यूनिट, तो सबऑर्डिनेट गोल्स टू बी सेटअप फॉर ईच सब यूनिट, तो हर सब यूनिट को एक सबऑर्डिनेट गोल देंगे. और देन क्या होगा, यूनिट्स एंड फॉर्मुलेट अ प्लान ऑफ एक्शन, तो हर यूनिट और सब यूनिट अपना अपना प्लान ऑफ एक्शंस फॉर्मुलेट करेंगी. एक पीरियोडिक फीडबैक होगा एंड देन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस होगी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. तो जब प्रोग्राम ख़त्म होगा देन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस होगी, बीच में फीडबैक भी होगा. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप्स हैं. Now let us see what are the advantages of this method. First advantage is as the objective is divided for each one of them. ठीक है. तो objective is divided, so therefore everyone knows his duties. Okay. Second क्या है कि each person has independent decision for doing his work. बिकॉज हर कोई अपना अपना प्लान सब यूनिट अपना खुद बनाती है, तो ईच पर्सन और हर पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ईच पर्सन हैज़ इंडिपेंडेंट डिसीजन फॉर डूइंग हिज वर्क. ओके. What is the disadvantages? Priorities are given to short-term objectives.
ओके, सेकेंड इज इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन रिजिड, कि ये काम इसका है, ये काम उसका है, तो इट विल मेक द ऑर्गेनाइजेशन अ बिट रिजिड, एंड द सक्सेस हियर डिपेंड्स ऑन द फीडबैक. ओके, सो इफ़ वी डिस्कस इट वंस अगेन, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मैनेजर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक मेंबर को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हेल्थ टीम को भी फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सब यूनिट्स, एंड हर सब यूनिट जो होती है अपना अपना प्लान, वो अपने अपनी एक्टिविटीज़ खुद प्लान करती हैं वो. तो इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स से सबसे पहले एक गोल को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद यूनिट्स एंड सब यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन सबऑर्डिनेट गोल्स हर एक यूनिट के लिए सेट किए जाते हैं, देन जो यूनिट है वो अपना अपना फॉर्मुलेट करती हैं अपना अपना प्लान ऑफ एक्शन, बीच में पीरियोडिक फीडबैक्स मिलते रहते हैं, एंड देन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. एडवांटेजेस क्या हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड, एवरीवन नोज हिज ड्यूटीज़, एंड हर पर्सन का अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजन होता है फॉर डूइंग हिज वर्क, and disadvantages of priorities are shared for short-term objectives, makes the organization rigid, and success depends on these periodic feedbacks. The next qualitative tool is the Health Information System, HIS, providing right information to the right person in right time helps in right decision for better results. Okay, HIS, Health Information System, it collects information from all the corners, analyze it, store it in the computer, which is later utilized in monitoring and evaluation of health programs. So this is how HIS is used in health management. The example you can give of health management information system in NRHM, in RNTCP or NACP. Okay. The last qualitative tool is communication. Better the communication among the members of the health team and with the public, better will be the efficiency of the team. So these are the qualitative methods of qualitative tools of health management. That is the organizational design, the personal management, management by objective, then health information system, and communication. Now we will start with the quantitative tools. Now, coming to the quantitative tools of health management, these are the 5 quantitative tools. The first one is the cost benefit analysis, then cost effective analysis, then cost accounting, then network analysis, in which we have PERT and CPM. PERT is program evaluation and review technique, and CPM is critical pathway method, the input output method. Okay, so these are the quantitative tools, and we will discuss each one of them one by one. The first quantitative tool is cost benefit analysis. In this technique, first the cost of the program is analyzed, then the outcome or the benefit of the program is also estimated in terms of monetary units. The course of action, which gives the highest monetary return for the lowest investment, is regarded as the best one. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोग्राम है हम उसकी कॉस्ट देखेंगे. प्रोग्राम की कॉस्ट को देखने के बाद हम लोग जो उसका आउटकम है या जो उसका जो बेनिफिट है हम उसकी कॉस्ट देखेंगे. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, है ना, उसको हम देखेंगे. फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉनेटरी रिटर्न देता है फॉर द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, that is regarded as the best one. Okay, but the issue is in the health fields the benefit cannot be expressed in monetary terms. Okay, so we can make an attempt to translate this outcome of benefit, जैसे कि morbidity and mortality prevented, by considering the direct and indirect costs. Okay, like the direct cost saved are cost of the drugs, cost of hospitalization, cost of investigations which are saved, and indirect costs are saving of loss of wages. Okay, so it can be estimated that the money saved for hospitalization, drugs, working days, etc. So this way we can uh, estimate the benefit in terms of monetary unit. Okay, now let's see the limitations of this method. The first limitation is at times it is difficult to convert indirect benefits into monetary funds.
Okay, it's difficult to convert these indirect benefits into monetary funds. Okay, the second limitation is some interventions have collateral benefits. This leads to confusion in calculation of monetary funds. Okay, like prevention and control of typhoid in the community by providing good water supply or clean water supply, but this have collateral benefits. That is, not only typhoid will be prevented, but also other waterborne diseases will also be prevented. Okay, so because of having collateral effects, there is confusion in calculation of monetary funds. The third limitation is the lead time. Lead time is the interval between doing any intervention and the benefit. So is the interval between the application of intervention and the benefits is often too long. This leads to difficulty in converting the benefits into monetary value. Okay, and the last limitation is sometimes during allocation of budget for two programs, one program being more important and the availability of resources is limited. Under such circumstances, money may be allotted to one program only. है ना? Here, the loss of benefit due to rejecting the other program is not considered. Okay, we are only considering the gain of benefit. We are not considering the loss of benefit. जो हमने एक program को reject करके जो loss of benefit होगी, that is not considered. So these are all the limitations of cost benefit analysis. Now coming to the second method, the second quantitative method, that is the cost effective analysis. It is similar to the cost benefit analysis, except that the benefit here is not expressed in terms of monetary units but expressed in terms of results achieved. Examples, we have number of lives saved or number of disabilities averted, number of sickness free day gained, yeah, increase in life expectancies, etc. Okay, because of this difference, this cost effective analysis is better appreciated and used than cost benefit analysis in healthcare. Okay, there are two approaches in cost effective analysis. The first one is fixed cost approach and the second one is fixed effectiveness approach. जैसे नाम ही बता रहे हैं, कॉस्ट को अगर फिक्स करके इफेक्टिवनेस को देखते हैं, इफेक्टिवनेस को फिक्स करके अगर हम कॉस्ट को देखें, तो फर्स्ट वन में क्या है, हियर द एनालिसिस इज इन द टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर यूनिट कॉस्ट. ठीक है ना, एक यूनिट कॉस्ट पे कितना इफेक्टिव हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ डेथ्स एवर्टेड पर लाख रुपये, है ना, 1 लाख रुपए से इस तरह से कितनी लैक्स डाइवर्ट हो सकती हैं, या फिर बी टेक्निक से कितनी डेथ्स एवर्ट हो सकती हैं. ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी दैट विल बी द बेस्ट वन. हियर यूनिट कॉस्ट देखेंगे, है ना, देयरफॉर हियर इट इज़ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर यूनिट कॉस्ट. और यहाँ पे फिक्स्ड इफेक्टिवनेस है, तो हियर एनालिसिस विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिवनेस. जैसे कि कॉस्ट ऑफ एवर्टिंग वन डेथ, ये डेथ को एवर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे हैं और एक टेक्निक से 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो 1 लाख रुपए वाला विल बी द बेस्ट वन. नाउ लेट्स सी द स्टेप्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो. ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव है. ओके, तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्या है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने वेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉसिबल वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्या होगा, जितने भी वेज आपने आइडेंटिफाई करें हैं, हर वे की आपको कॉस्ट देखनी है और हर वे की आपको इफेक्टिवनेस देखनी है. तो कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच मेथड एंड द इफेक्टिवनेस फॉर ईच मेथड एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट वन एंड देन इम्प्लीमेंट द बेस्ट वन. So these are the steps in cost effective analysis. So if we see the applications of this method, the first one will be identification of the best option out of all health interventions. सारे intervention में which one is the best option? So identification of that. Second, you can identify the choice of strategy, the choice of technology, which choice is better. Okay, like hospital treatment versus domiciliary treatment in tuberculosis. Okay, then it helps in identification of better healthcare delivery system. So which healthcare delivery system is better, with the Anganwadi is better, Asha is better, like this. Then identification of the best component of the program, then identification of resources. Like this, you can identify a lot of things using cost effective analysis. Okay, the next क्वांटिटेटिव टूल इज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो आपको कॉस्ट पता करनी है. तो इसमें क्या होता है, इट्स अ मेथड जहाँ पर बाय विच द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम
कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस मेथड से हम कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, कॉस्ट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं यहाँ पर, इनपुट मेथड या फिर फंक्शन बाय फंक्शन और एक्टिविटी। इनपुट मेथड में क्या है, जो भी इनपुट उसके लिए लगे हैं तो वन टाइम परचेज ऑफ आइटम्स और रिकरिंग कॉस्ट उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय फंक्शन और एक्टिविटी से क्या होता है, इन दिस टाइप द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द मनी विच इज स्पेंट ऑन एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, सुपरविजन, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्ट। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर क्या क्या कॉस्ट लगा है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर इनपुट्स पे कॉस्ट कवर किया जाता है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ पे क्या कॉस्ट है वो कवर किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, सुपरविजन, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट मेथड इज इनपुट आउटपुट मेथड विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इनपुट इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई भी हेल्थ सर्विस एक्टिविटीज़ विच कंज्यूम द रिसोर्सेज, like your manpower is your input, money is the input, material is the input, time is the input. Okay, so input could be manpower, could be money, material or time, and output could be cases treated or lives saved. ओके, तो इसमें हम देखते हैं इनपुट आउटपुट इक्वेशन देखते हैं कि हमें कितना इनपुट चाहिए टू प्रोड्यूस वन सिंगल आउटपुट, हमें कितना इनपुट चाहिए होगा, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ ईच इनपुट इज नीडेड टू प्रोड्यूस द यूनिट अमाउंट ऑफ ईच आउटपुट। ओके, एक यूनिट अमाउंट है तो हमें कितना इनपुट चाहिए होगा। तो इट इनेबल्स द कैलकुलेशन टू बी मेड बाय चेंजिंग द इनपुट्स, है ना, बाय इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द इनपुट्स, तो वी कैन मेक द कैलकुलेशंस। सो दिस इज अनदर मेथड, इनपुट आउटपुट मेथड। नाउ अनदर मेथड, quantitative tool is network analysis. First of all, what is a network? नेटवर्क एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द प्लान ऑफ अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का जो प्लान होता है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इन विच डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, देन द टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, द पॉइंट ऑफ स्टार्ट एंड द पॉइंट ऑफ एंड, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स एंड अदर डिटेल्स आर प्रेजेंटेड। ओके, सच प्रोग्राम्स को हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क इज नथिंग बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्लान ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम्स को हम यहाँ प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जहाँ पर हम उनका डिटेल्स, टाइम रिक्वायरमेंट, स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट्स, ये सब हम प्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, नाउ नेटवर्क एनालिसिस में इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्टिविटीज़ और एक इवेंट्स। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, पहले प्रोग्राम को मैंने बताया था प्रोजेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में क्लियरली डिफाइंड जॉब्स ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी क्लियरली डिफाइंड जॉब्स होंगे उनको हम लोग एक्टिविटीज़ कहेंगे, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमने पहले बताया था नेटवर्क इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो ग्राफ या फिर जो डायग्राम होते हैं, दे शो सीरीज ऑफ एरोज एंड सर्कल्स। तो ये कई सारे सीरीज ऑफ एरोज एंड सर्कल्स होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, एरोज एंड सर्कल्स, सीरीज ऑफ एरोज एंड सर्कल्स होते हैं। तो एरोज जो हैं, ये एरो रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ा एरो तो ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर ईच एक्टिविटी द एरो रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ईच एक्टिविटी, और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होती है, ठीक है। लेफ्ट जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेल एंड द राइट इज द हेड एंड। ओके, सो इट स्टार्ट्स विद एन इवेंट एंड एंड्स विद अनदर इवेंट। तो यहाँ को एक इवेंट होता है, उससे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, एक्टिविटी, और किसी और इवेंट पे एंड हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट्स विद एन इवेंट एंड एंड्स विद अनदर इवेंट। ओके ओके, नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। द फर्स्ट वन इज सीरियल एक्टिविटी। सीरियल एक्टिविटी का मतलब है कि वन एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी इज टेकन अप। तो पहले एक एक्टिविटी ख़त्म होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बट पैरेलल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर टेकन अप साइमल्टेनियसली। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर टेकन अप साइमल्टेनियसली। सीरियल में क्या होता है, पहले एक एक्टिविटी फिनिश होगी, देन उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी टेकन अप। ओके, यहाँ पर साइमल्टेनियसली डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर टेकन अप। And dummy activities, these are unreal and assumed activities will be taken up with a specific purpose. Okay, activities एक specific purpose के लिए ली जाएंगी, ठीक है। these are unreal activities. Okay, एक टर्म फ्लोट भी याद रख लेते हैं। फ्लोट क्या होती है, द ड्यूरेशन टू विच एन एक्टिविटी इज डिलेड। तो वो ड्यूरेशन जिसमें एक्टिविटीज़ डिलेड होती है, ड्यूरेशन टू विच एन एक्टिविटी इज डिलेड। तो नॉर्मल एक्टिविटी को इतना होना चाहिए था, बट इट हैज़ बीन डिलेड बाय दिस ड्यूरेशन, तो दैट इज नोन एज फ्लोट। Okay, the duration to which an activity is delayed is known as float. Okay, the second component is an event. Event in a network analysis is a stage in the project.
ओके, हमने पढ़ा था एक्टिविटी क्या होती हैं, दीज आर जॉब्स, ओके, दे आर क्लियरली डिफाइंड जॉब्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वाइल इवेंट इज अ स्टेज इन द प्रोजेक्ट, ओके। एंड इवेंट को हम लोग नोड भी कहते हैं, और इट इंडिकेट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे ये एक इवेंट है तो यहाँ पर एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, दूसरे इवेंट पे वाली एक्टिविटी एंड हुई एंड न्यू एक्टिविटी है स्टार्टेड, ठीक है। तो इवेंट में इट्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी और एट द एंड ऑफ अनदर एक्टिविटी, ठीक है। द फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है ना, तो फर्स्ट वन जो होता है उसे हम बोलते हैं द इनिशियल वन इज नोन एज आई नोड बोलते हैं इनिशियल वन वाले को। द फर्स्ट वन इज नोन एज आई नोड, इनिशियल नोड, एंड द लास्ट इवेंट इज नोन एज टी नोड, दैट इज द टर्मिनल नोड। और जो बीच वाले जितने इवेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं। तो अगर ये यूँ हैं तो दिस इज द initial node, this is the terminal node, these are the intermediate nodes, okay। नाउ हर नोड को हम एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइंग अ क्रॉस, ठीक है ना। हम एक क्रॉस ड्रॉ करेंगे और इसे हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4, ओके। जो सबसे ऊपर वाला जो है अपर सेक्शन है उसमें हम नंबर ऑफ नोड्स लिखते हैं। तो अगर ये इस तरह से है, ठीक है, अगर ये इस तरह से है तो दिस विल बी द फर्स्ट नोड, दिस विल बी द सेकेंड नोड, दिस विल बी द थर्ड नोड, ठीक है। तो अपर मोस्ट सेक्शन पे हम लोग नंबर ऑफ, ठीक है ना, द नंबर ऑफ नोड्स लिखते हैं। फिर हमारे पास है लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन पे हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम लिखते हैं, ईपीटी, है ना। और जो राइट हैंड सेक्शन है, ठीक है, उस पर हम लोग लिखते हैं लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, दिस इज अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, ओके, दिस इज अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, एंड दिस इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कितना अर्ली से अर्ली हो सकता है, समझ लो 1 सेकेंड में टास्क हो सकता है, ठीक है ना। और लेटेस्ट सबसे ज़्यादा लेट से लेट कितना हो सकता है, 2 सेकेंड में हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम ये लिखते हैं। एंड द लोएस्ट सेक्शन जो होता है वहाँ पे हम लिखते हैं स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन ईपीटी एंड द एलपीटी, ओके। द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द ईपीटी एंड द एलपीटी, यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द ईपीटी एंड एलपीटी इज नोन एज स्लैक, विच इंडिकेट्स द टाइम ड्यूरेशन टू विच एन इवेंट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है ना। ये उतना टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, उतना टाइम ड्यूरेशन है जितना अगर डिले हो गया तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल नॉट बी डिलेड। क्योंकि प्रोजेक्ट में कवर अप करके रखा है कि मैक्सिमम 2 सेकंड तक खत्म होगा, या मिनिमम ये अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 1 सेकंड में खत्म होगा। एंड द स्लैक विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द 1 सेकंड, ठीक है, विच अगर दिस इज द मिनिमम ड्यूरेशन, अगर इससे ज़्यादा डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन टू विच एन इवेंट कैन बी डिलेड, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इतना हम डिले कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, इट कैन बी डिलेड, ओके। Okay, similarly हमने बोला था the duration to which an activity is delayed is known as float, okay। we should know that an event does not consume time। अगर हमें यहाँ से दिख तो रहा है कि डिले हो रहा है इवेंट, बट पर से एक इवेंट कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता, इट इज़ द एक्टिविटी विच कंज्यूम्स द टाइम, ठीक है। हाउएवर एन इवेंट themselves do not consume in time, it is the activity which consumes the time, and we know the duration to which an activity is delayed is known as a float, ठीक है। float we have already discussed that। So slack is calculated for an event while float is calculated for an activity. Remember that float is not entered in the network diagram, okay, it is not entered in the network diagram. Next is the duration of the activity. The series of activities of the project is called the path, and the time required to finish the project is called the path duration, and path duration is indicated at the top of the network, जैसे कि ये है, इधर जा रहा है तो इसके ऊपर ये टाइम लिख दिया जाएगा कि इस पाथ को इट विल टेक 0.5 सेकेंड और वट एवर सेकेंड इट विल टेक, सो इट विल बी रिटन अबव, एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स दीज आर नोन एज द पाथ, एंड द टोटल टाइम टेकन टू अचीव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज द पाथ ड्यूरेशन, ओके। एंड नोड्स आर in the sequence are joined by arrows, you can see they are joined by arrows, okay, which are activities. Now having discovered what is path, we will study the first part of network analysis, the critical path method, okay। critical path method में वो वाला path, critical path क्या होता है, first of all you should know what is critical path। वो वाला path in the network that passes through various activities with least float, ठीक है। वो वाला path in the network that passes through the various activities with least float, ठीक है। तो it is the longest path for the completion of the plan, ठीक है।
अगर any activities along the critical path got delayed, then the entire project is delayed. Okay, and this method is developed by an American firm, and here cost consideration is important. Okay, now coming to the second method in network analysis, that is PERT. PERT is program, P for program evaluation and review technique. Program evaluation and review technique. यहाँ पर भी सेम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एरो डायग्राम्स ही होगा विच रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, स्पेशली दोज वेयर द कॉस्ट फैक्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ especially those where the cost factor is not very important, unlike in CPM where the cost factor is important. Okay, तो इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. कौन से वाले इवेंट्स वेयर द कॉस्ट फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर कॉस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा तो हम CPM देखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बाई यूजिंग सच डायग्राम इट्स पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में, एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल. ओके, एंड वॉज डेवलप्ड बाई US Navy. इट वॉज डेवलप्ड फॉर डिफेंस प्रोग्राम. ओके, यहाँ पर क्रिटिकलिटी देखते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई PERT यहाँ पर यूज होता है. यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस कॉस्ट वाला जो कॉम्पोनेंट है दैट इज इन CPM. Now what are the uses of this network analysis? फर्स्ट हम इसे प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देन क्या क्रूशियल प्रॉब्लम्स हमारी प्रोग्राम में हो रही है हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन दिस विल अलाउ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. है ना, हमें पता हो कि दिक्कत, तभी हम बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन कंटिन्यूअस टाइमली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये देता रहेगा. इट विल प्रोवाइड अस कंटिन्यूअस टाइमली प्रोग्रेस रिपोर्ट. देन इट विल फॉर्म अ सॉलिड फाउंडेशन जिसके ऊपर इवैल्यूएशन एंड चेकिंग इज बिल्ट. है ना, एक फाउंडेशन देगा जिस पर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को. सो दिस इज ऑल अबाउट health management. These are the tools of health management. Okay, and on the basis of these tools we come to a decision. Okay, so this is all about health management. Thank you so much.